জয় হো মা নর্মদা, জয় হো মা ভগবতী মারেবা। এক অলৌকিক অনুভব নর্মদাখণ্ড এমন একটি পবিত্র স্থান, এখানে আসলে আমরা এমন সব অনুপম অভিজ্ঞতা লাভ করি যা কল্পনা করাও কঠিন। মা নর্মদা পবিত্র তীরে বসে যখন কেউ নিজেকে সব রকম চিন্তা মুক্ত করে, অর্থাৎ শূন্য বিচার অবস্থায় রাখে, সে তখন অপার শান্তি এবং প্রশান্তি লাভ করে। কি আছে মা নর্মদা নদীর পাড়ে? কেন সাধু ত্যাগী তপস্বী মুনি ঋষিরা সাধনা করেন? তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব আমরা। জয় হো মা নর্মদা, জয় হো মা ভগবতী মা দেবা। তপোভূমি নর্মদায় আজ আমরা সেই পুণ্যশ্লোক সাধুর দর্শন লাভ করছি, যার পুণ্যময় দৃষ্টিপাতেই মানব জীবন সকল আকাঙ্ক্ষার শান্তি হয়, যার কৃপাধারা লাভ করলে জীবনে আর কোনো প্রাপ্তির প্রয়োজন থাকে না। সকল দুঃখ, সকল চাওয়া বিলীন হয়ে যায় পরম শান্তিতে। ভগবানের শ্রেষ্ঠ কৃপা মানুষের এই মহান সাধু সন্তের দর্শন হয়। আমি জীবনে কল্পনা করতে পারিনি যে এই মহান সন্তের আমি দর্শন পাব। মহারাজ মহাযোগী দিগম্বর গঙ্গা ভারতী বরফানি বাবা, তিনি হিমালয়ের এক মহান সাধক এবং ক্রিয়াযোগীর একজন উচ্চস্তরের সিদ্ধ পুরুষ। তিনি ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করেন। ক্রিয়াযোগ হল দ্রুত আত্ম উপলব্ধির জন্য একটি বৈজ্ঞানিক যোগ পদ্ধতি। আশ্রমের পূজারী বলেন তার শরীর বঙ্গভূমি থেকে এবং তার বয়স এখন 150 বছর। শরীর কাহা সে? इनका शरीर जो है ये वैसे तो उधर कलकत्ता के ही हैं, हाँ। बचपना इनका, पर लेकिन ये बद्रीनाथ में इन्होंने 60 वर्ष बिताए तपस्या में। अच्छा। पर है कलकत्ता के, उन्होंने 12 वर्ष तक पूर्ण भ्रमण किया काफ़ी दूर तक, और 12 वर्ष के बाद में 12 वर्ष तक इन्होंने नर्मदा की परिक्रमा में लगाए। उसके बाद में विचरण करते हुए ये हिमालय में पहुँचे। इन्होंने वहाँ पर अपना 60 वर्ष तपस्या की। जब इनकी आयु 125 से ऊपर हो गई, तब इनका जब शरीर जो है 2016 में जो ये अभी कुंभ हुआ, उसमें जो है आए, तब इनको यहाँ का पता चला कि भाई माँ नर्मदा के किनार के ऊपर माँ नर्मदा भक्ति करने से ऐसा ऐसा होता है। फिर इनको मन हुआ तो इन्होंने नर्मदा किनारे के ऊपर भक्तों के द्वारा आश्रम बनाया गया, और यहाँ पर उनको भक्तों के द्वारा सब किया जाता है। परिक्रमावासियों की सेवा के लिए था आश्रम में, वहाँ पर भी भक्तों को रहने के लिए जगह जगह उनको जगह दी जाती थी, भोजन प्रसादी दी जाती थी। नारायण पर्वत के ऊपर इनकी गुफा वगैरह थी, और वहाँ पर गुफा में ये भक्ति करते थे। इस प्रकार से जो है कि इनकी आयु काफ़ी है। महाराज जी का आयु जो है इनकी लगभग 150 से ऊपर हो गई। 150 साल? क्योंकि क्रिया योग जानते हैं, क्रिया योग में इनको माहौतारी बाबा 3000 वर्ष के होने के बावजूद में भी इनसे मिलना जुलना होता था। उन्होंने इनको क्रिया योग सिखाई। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे। মহারাজ জি, জীবনের মূল উদ্দেশ্য কি? আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য কি? মূল উদ্দেশ্য আমাদের সাধু, হ্যাঁ সাধু না না, আমাদের গৃহস্থীদের। গৃহস্থী সনাতন ধর্ম, सनातन धर्म चलना, सनातन धर्म को मानना, सनातन धर्म विस्तार करना। माँ बाप पहला प्रथम गुरु माता पिता, दूसरी गुरु गौ ब्राह्मण, तीसरी गुरु अतिथि भव। ये सब ये स्थिति ये सनातन धर्म। अच्छा।
সৎ সনাতন যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য আজ ভুলে যাচ্ছে, অন্য করছে। তো समय विशेष पलटता है, क्या करें, चलना उद्देश्य भगवान की पूजा करना, पाठ करना, माता पिता का सेवा करना, आए गए का सत्कार करना। कोई भी आए गए सत्कार करना, माता पिता का सेवा करना, गौ ब्राह्मण का रक्षा करना, तो ये सब तो भूल गए। नर्मदे हर। জয় হো মা নর্মদা, জয় হো মা ভগবতী মা রেবা। আমরা এখন চন্দ্রেশ্বর মন্দিরে আছি। এখানে মহারাজজি বলছেন যেখানে একটা ঘন্টা আছে, ঘন্টাটা বাজালে ওম শব্দে ধ্বনি উচ্চারণ হয়, জয় হো মা নর্মদা, জয় হো মা ভগবতী মা রেবা। চলুন আমরা দর্শন করি সেই ঘন্টা। জয় হো জয় হো মা। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, হর হর ভোলে নমঃ শিবায়। গঙ্গাধারায় শিব, গঙ্গাধারায় হর হর ভোলে নমঃ শিবায়। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, হর হর ভোলে নমঃ শিবায়। নর্মদা খণ্ডের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় পটভূমিতে চন্দ্রেশ্বর মন্দির এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এটি কেবল একটি প্রাচীন মন্দির নয়, বরং এটি একাধিক রহস্যময় বৈশিষ্ট্য এবং গভীর আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র। এই মন্দিরের সবচেয়ে চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল এর উপর চন্দ্রমা এবং সূর্যের প্রথম কিরণ সরাসরি এসে পড়ে, যা এটিকে এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে তোলে। মন্দিরের ঘণ্টা যখন বেজে ওঠে তখন তার শব্দ কেবল একটি সাধারণ ধ্বনি নয়, এর আওয়াজ যেন স্বয়ং ওম ধ্বনিতে উচ্চারণ করে। का घंटा है, इसी को वैज्ञानिक लोगों ने छेड़छाड़ करके इसमें जो 40 किलो की जो थी, जो 2 आदमी खींचते थे, इसकी आवाज जो है 2-2 किलोमीटर के अंतराल में काफी गूंजती हुई ओम आकार की पहाड़ी ओम निकलता है इसमें। और ओम में से जो है इन्होंने जो है अभी छोटी बिठा दी है तो छोटे गुंजती है, पर इसमें से ओम निकलता है। और इसी के कारण जो है इसकी महिमा नर्मदा खंड में बहुत बड़ी है। है ना? तो जो हम बात बता रहे हैं, तो ये नर्मदा खंड में इसकी बड़ी महिमा है। महाराज जी कहाँ से हो आप? इधर आइए। बड़ौदा से है। बड़ौदा से। अच्छा, क्या नाम है आपका? राघवेंद्र। अच्छा महाराज जी, माँ नर्मदा की निर्णय क्यों लिया आपने? बचपन से गरुड़ेश्वर जो है वहाँ नर्मदा जी के स्नान के लिए जाते हैं, करीबन 50-55 साल से। तब से ये नर्मदा जी के लिए प्रेम है। और अभी सब ये जो सांसारिक जो कुछ जिम्मेदारी होती है वो सब खत्म हो गई है, तो अभी अपने लिए भी कुछ जिए, अच्छा दुनिया के किनारे जाए जितना हो सके, उसकी अच्छा। कृपा है तो ही चल सकते हैं। अच्छा, परिक्रमा करने पर मोक्ष मिलती है? मोक्ष ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुनि में व्यतीतानि, ऐसा भगवान ने भी जन्मानि तव च अर्जुन, ऐसा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला है कि अनेक जन्म लेकर आज हम फिर से मिले हैं। तो वैसा ही होता है, भगवान की कृपा रहे, सन्मार्ग पर चले, बस इतनी। महाराज जी, मैं बंगाल से हूँ और बंगाल में माँ नर्मदा जी के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं, तो आप थोड़ी सी बताएंगे?
माँ नर्मदा जी के बारे में? कि हाँ। ऐसी हमारी यहाँ पवित्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। गंगा जी सबसे पवित्र है, लेकिन गंगा जी के पवित्र शास्त्र पुराणों में कहीं नहीं है। नर्मदा जी के किनारे शंकर जी का वास है। हर कंकर में शंकर जो बोला जाता है वही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी, थोड़ी सी मार्गदर्शन देंगे? बस महाराज जी कहाँ से हो आप? मैं सागर का हूँ। आपका नाम? लोकेंद्र मिश्रा। अच्छा महाराज जी, मैं बंगाल से हूँ और बंगाल में माँ नर्मदा जी के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं, तो आप थोड़ी सी बताएंगे माँ नर्मदा जी के बारे में? नर्मदे मैया की मेरा कहना तो यही है माँ नर्मदा जी के बारे में कि माता तो साक्षात मोक्षदायिनी है, और मुझे तो मैया की प्रेरणा हुई तो मैं उनके चरणों में आ गया। अच्छा महाराज जी, कैसे क्या प्रेरणा आई परिक्रमा करने का? मुझे लगभग 2 महीने से लग रहा था हाँ। कि मतलब मन में ऐसी इच्छा जागृत हो रही थी हाँ। कि माता की परिक्रमा के लिए जाना है। तो जीवन में जब से मतलब होश आया है तो संस्कारवान परिवार से तो है ही, धार्मिक प्रवृत्ति के, धार्मिक विचार के भी हैं, तो अत्यधिक प्रबल इच्छा हो रही थी, क्योंकि रामायण पाठ वगैरह और धार्मिक कार्यों में सम्मिलित तो होते ही रहते हैं। इनके अलावा पिछले अभी 29 जुलाई को मैं जम्मू कश्मीर की यात्रा पे था, तो माँ वैष्णो देवी की यात्रा पे गया था और मैंने अमरनाथ जी का रजिस्ट्रेशन भी करवाया था अमरनाथ यात्रा के लिए। तो वो लैंडस्लाइड और ऑपरेशन सिंदूर की वजह से स्थगित हो गया अमरनाथ जाने का प्लान। तो वैष्णो मैया के दर्शन तो हो गए, उसके बाद घर वापस आया तो मन में प्रबल इच्छा जागृत हो रही थी कि अब माता की परिक्रमा करने जाना है नर्मदा मैया। तो अभी 5 तारीख को मैं अमरकंटक आ गया, वहाँ से 7 तारीख को मैंने मैया की पैदल परिक्रमा शुरू कर दी, और जब से मैं परिक्रमा पे हूँ लगभग 1 महीने हो गया था 7 तारीख को, तो तब से बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और मतलब ऐसा लगता है माता की गोद में। थोड़ी सी बताइए ना महाराज जी, कैसा मतलब माई का जो अनुभव कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे तो अत्यधिक प्रसन्नता होती है। अच्छा, प्रसन्न हो रहा है। सुबह से मतलब बहुत अच्छा रूटीन बन जाता है। तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे जाग के दिनचर्या अपनी करके पूरा पूजा पाठ करके मैया की और निकल जाए तो सुबह से बहुत अच्छा लगता है माता के किनारे से जाने में, और मन में अत्यधिक प्रसन्नता होती है। वो अपने भाव हम एकदम शब्दों के रूप में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छा फील है। महाराज जी, लोग बोलते हैं कि माँ नर्मदा जी परिक्रमावासी के साथ साथ चलती और दर्शन भी देते हैं, ऐसा कभी अनुभव हुआ आपके साथ? मैंने तो जैसे कोई मार्ग 3 तरफ से रास्ता गई है, जहाँ चौराहा मिला तो कहीं अपन को समझ में नहीं आ रहा कि ये मार्ग में दाएं जाना है कि बाएं जाना है। कुछ ना कुछ माता की कृपा हुई है। कन्या रूप में नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर महाराज जी, माँ आपका हर मनोकामना पूर्ण करे। नर्मदे हर महाराज जी। भाव और श्रद्धा लेके चलेंगे तो माँ नर्मदा आपको दर्शन देगा। जय हो माँ नर्मदा। आपको भाव
को दंडवत प्रणाम करता हूँ मैं। महाराज जी नर्मदे नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा, जय हो माँ नर्मदा, मैया की जय। मैया अमरकंठ वाली तुम्हें हो भोली भाली नर्मदा जानारी तुम्हें हो भोली भाली भूरी मंगल पर सवारी हाथ कमल का फूल भूरी मंगल पे करी सवारी हाथ कमल का फूल सबको देती रे